Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. We are going to start unit 4. Its title is Helping Others. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First we'll discuss about it and then I'll briefly describe what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about synonyms and antonyms, and we'll cover the SLO to locate, provide, connect, and use words similar and opposite in meaning. In lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about compound words, and we'll cover the SLO to recognize specific part of words, including common and fractional ending, compound words, and fixes. Our focus for this lecture will be compound word. Lecture 3, under the title of grammar, we'll learn about prefixes and we'll cover the SLO to recognize specific part of words, including common and fractional ending, compound words, and affixes will be our focus for this lecture. Lecture 4, again under the title of grammar, we'll learn about gender of nouns and we'll cover the SLOs to classify and change the gender, masculine, feminine, neuter of more nouns from immediate and extended environment, recognize and identify the common gender, use for both male and female. Lecture 5, again under the title of grammar, we'll learn about collective nouns and we'll cover the SLO to recall and demonstrate use of more collective nouns. Lecture 6, we'll learn about punctuation marks and we'll cover the SLO to identify and use question words, why, and how often, etc. Write sentences of their own by using correct capitalization, punctuation, and spelling. Recall the rules of punctuation learnt earlier. Lecture 7, under the title of pronunciation skills, we will learn about sounds of final ED. And we'll cover the SLO to recognize and practice the ED has 3 sounds as D, T, and I'd through context. Lecture 8, we'll recite and understand the poem and we'll cover the SLO to read the poem with action, express opinion about the poem, and write central idea of the poem in simple language. Lecture 7, under the title of listening and speaking, we'll learn how to request and respond to requests. And we'll cover the SLO to use appropriate expression in conversation to request and respond to requests. Lecture 8, under the title of writing, we'll learn how to write a descriptive paragraph and we'll cover the SLOs to use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph by giving physical description and character traits, characteristics of a person, objects, places, moving from general to specific. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is how we'll cover this unit according to SLOs. And now let's understand what this unit is about. The title of the unit is Helping Others and its theme is Peaceful Coexistence, Peace Education, Friendship and Helping Others. Yes, my dear children, क्या बात समझ में आती है? ये थीम आपको क्या बताता है कि हमें मिलजुल कर बाहमी इत्तेफाक मोहब्बत ये गानगत के साथ रहना है और हमें एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, हमें एक दूसरे को हेल्प करना है। एक अच्छे घराने, एक अच्छे मुआशरे के लिए उसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत और अखुवत होती है, राइट? यही इस नज़्म का, इस पोम का थीम है और अब देखते हैं कि इस थीम को इस नज़्म में किस तरह से बताया गया है। हेल्पिंग अदर्स, जब ये बात बोली जाती है तो क्या समझ में आता है? ये देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। कौन किसकी हेल्प कर रहा है? असल में बेटा, अगर इसमें से कोई एक भी रुक जाता है ना तो दोनों ही हेल्पलेस हो जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं अपने लिए आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। नो, हम कहीं पर हम हेल्प कर रहे होते हैं और कहीं पर हमारी हेल्प हो रही होती है। और अगर हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो असल में वो हेल्प वापस हमारे पास आती है। और
वाइस वर्सा, अगर हम दूसरों की हेल्प नहीं करते तो इसका मतलब है जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर हमारी हेल्प भी कोई नहीं करेगा। इसलिए जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को फैसिलिटेट करते हैं, तो ये मत समझें कि आपने उसके ऊपर कोई एहसान किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया, आप किसी की हेल्प कर सकें, और ये हेल्प आपके पास वापस आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो कोई मौजूद होगा आपको हेल्प करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? Okay, so the first sentence of helping others in the hour of need is obviously the best deed. Hour of need, ये बेटा बहुत important बात है समझने की कि जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है आप ज़रूर उसकी मदद करें। ये नहीं कि मेरा मूड है तो मैं हेल्प कर दूँ, नो अभी तो मेरा मूड नहीं है, ठीक है जो भी इनका मसला ये खुद ही, नो नो दैट्स नो। जब कोई मुश्किल में है, कोई मुसीबत में है, उस वक्त उस हेल्प के टाइम पर उसको मदद करना, नो मैटर व्हाट आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, लेकिन आपने बढ़कर उस गिरते को थाम लिया, किसी को रोड क्रॉस करा दी, किसी बुजुर्ग की गिरी हुई चीज़ उठा के, ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं ना। तो ये जो ज़रूरत के वक्त हेल्प है, यही सबसे बेहतरीन अमल है, राइट? इफ़ यू कैन डू नथिंग एट लीस्ट, मतलब यू कैन प्रे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम कभी अस्तगफिरुल्लाह अगर करने जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम दुआ तो हर वक्त कर सकते हैं ना दूसरों के लिए। It will give them hope and wash tear away. जब हम दूसरों को और कुछ भी नहीं, एक तसल्ली का बोल देते हैं, एक अच्छी बात कह देते हैं, तो उनको एक उम्मीद मिलती है। वो जो एक अपनी मुश्किल में, परेशानी में, एक सैडनेस की फीलिंग में है, उनको एक उम्मीद होती है कि हाँ ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला करम करेंगे, इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह हमारी मदद। इस तरह से हम अच्छी बात तो कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, ठीक है? So help others and play your part to gain their prayers and be smart. Yes, this is the way. जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो दूसरे उसके बदले में क्या करते हैं? आपको दुआ देते हैं, और वो जो दुआ है वो असल में आपके बहुत काम आती है। और यही स्मार्ट, बी स्मार्ट का मतलब है कि समझदार लोगों का ये तरीका है कि आपने किसी को हेल्प किया, और हेल्प सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं या आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। हेल्प का मतलब ये है कि आपने, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने किसी के लिए तसल्ली का एक बोल दिया, वो भी हेल्प है, और उसके बदले में उसने आपको दुआ दी, तो इसका मतलब है यू डिड अ राइट जॉब, राइट? You will get best wishes and prayer of many at cost of not even a single penny. जब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उसके बदले में दुआएं ले रहे हैं, क्या इस पे कोई कुछ पैसे खर्च होते हैं? कोई कॉस्ट आती है इस पे? कुछ भी नहीं आती। तो फिर हम क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं? अब नहीं करेंगे, ठीक है? Don't run for money or fame. Helping others bring fortune and name. दुनिया के पीछे भागने का बेटा कोई फायदा नहीं है। हम अच्छे काम करें ताकि लोग हमें अच्छा समझें। नो, क्यों अच्छा काम करें? ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। और जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करते हैं ना बेटा, तो दुनिया खुद हमारे पास पहुंच जाती है। फिर हमें ये नेम भी मिल जाता है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम आपने सुना है ना? उन्होंने लोगों के लिए कितनी खिदमत की, कितनी मेहनत की, कितना काम किया, और ख़ुद ही मशहूर हो गए। उन्होंने मशहूर होने के लिए काम नहीं किया, लेकिन उनके काम ने उनको मशहूर कर दिया। तो बेटा जब हम अल्लाह के लिए, और ऐसी बहुत सी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, तो जब हम अल्लाह के लिए खालिस होकर काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें लोगों में भी इज़्ज़त देते हैं, राइट? इन शॉर्ट, हेल्प अदर्स विद ज़ील एंड ज़ेस्ट, इन फ्रंट ऑफ अल्लाह यू विल बी द बेस्ट। खालिस नीयत से, ज़ील एंड ज़ेस्ट, ये नहीं है सिर्फ ज़ाहरी नहीं बेटा, अंदर से भी पूरी खुश दिली के साथ दूसरों की मदद करें, और उसका नतीजा क्या है? अल्लाह आपसे खुश होंगे, और अल्लाह भी आपकी मदद के वसीले आपके इर्द गिर्द लोगों को आपकी मदद का ज़रिया बनाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो शुड वी हेल्प ईच अदर? यस, क्योंकि आज हमने ये बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि लोगों की मदद करने से अल्लाह ताला हमारी मदद का ज़रिया बनाते हैं। और इसका you want to know how do we know it? Yes, Allah mentions in the Quran, Surah Qasas, verse 77, and do good as Allah has done good to you. दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए मुफीद बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है।
اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو کسی قابل بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں اور دوسروں کو ہر وقت فائدہ دینے کے بارے میں سوچیں. وی شوڈ بی آن گیونگ اینڈ، رائٹ؟ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے بیٹا. یہ چیزیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اچھی اچھی باتیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں اور خود بھی ان پر عمل کریں. یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، رائٹ؟ سو دیٹس اٹ. ٹمارو انشاءاللہ ویل اسٹارٹ دس لیکچر. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر، کیپ لرننگ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.